Let's start with the 10th question. So if y is equal to x cube plus 3xy square plus 3x square y, then we have to find dy by dx. So let's begin. So we have that dy by dx is equal to x cube का derivative is 3x square plus 3 if I take common, then अगर x को हम ऐसे ही रखते हैं और y square का derivative लेते हैं तो हमें मिलता है 2y dy by dx plus, now I keep y square as it is, so I get y square and then x का derivative will be 1, okay, plus now 3 into x square as it is and y का derivative is dy by dx plus y as it is and x square का derivative is 2x. Okay, now so let's open everything and then after that we will take all the dy by dx terms on the left hand side. So here we have that dy by dx is equal to 3x square plus, यहाँ पे it is 6xy dy by dx plus 3y square plus here we have 3x square dy by dx and finally plus 6xy. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे. सो वी गेट दैट 1 माइनस 6xy माइनस 3x स्क्वायर dy by dx is equal to 3x square plus 3y square plus 6xy. ओके, अब इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे. सो dy by dx is equal to 3x square plus 3y square plus 6xy divided by 1 minus 6xy minus 3x square. अब जो टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर है वो लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से 3 कॉमन लेना होगा और नीचे में से हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमें मिलता है -3 x square plus y square plus 2xy divided by 3x square plus 6xy minus 1. ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देते हो तो भी इट इज़ करेक्ट ओनली, but if you want the answer behind the textbook then you have to take 3 and -1 common from the denominator. Now let's do the next question. So in the next question again we have to use the differentiation of implicit functions. So here we have 3x square plus 2y dy by dx plus, if I keep x as it is I get dy by dx, if I keep y as it is then I get derivative of x is 1 is equal to 0, derivative of 7. अब इसके बाद I will keep these two on this side एंड इन दोनों को मैं राइट हैंड साइड पे भेज देती हूँ. तो ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस वाई बराबर, और अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई divided by x plus 2y. Now in the 12th question again we have to use differentiation of implicit functions. So here x cube if I keep as it is and if I differentiate y cube then I get 3y square dy by dx बराबर. एंड अब मैं क्या करती हूँ कि y क्यूब को ऐसे ही रखती हूँ और x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो मुझे मिलता है 3x स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड पे क्या है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y dy बाई dx. ओके, अब आई विल टेक दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन टू द राइट हैंड साइड. सो आई गेट x क्यूब इंटू 3y स्क्वायर ओके plus 2y and then I will take common में dy by dx is equal to 2x minus 3x square y cube. Okay,
एंड अब मैं क्या करूँगी, इससे डिवाइड कर दूँगी. सो dy by dx इज इक्वल टू 2x minus 3x square y cube. Now I take x common from the numerator and I take y common from the denominator. So I get x 2 minus 3x y cube divided by y common, तो मिलेगा 3x cube y plus 2. And that is our final answer. So here this famous question returns again. इसके हमने ऑलमोस्ट इसी क्वेश्चन के 2-3 वेरिएशन सॉल्व कर लिए जहाँ पे ये और ये वैल्यू चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है. तो ये वाला क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले हम लॉग लेते हैं. सो दिस बिकम्स लॉग ऑफ x रेज टू 7 प्लस लॉग ऑफ y रेज टू 9 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस y रेज टू 16. राइट, मैंने लॉग की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर ली यहाँ पे और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में चेंज कर दिया है. अब हर जगह पे जो भी पावर है वो नीचे आ जाएगा. सो वी हैव दैट 7 log x प्लस 9 log y इज इक्वल टू 16 log ऑफ x प्लस y. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग. सो log x का डेरिवेटिव है x प्लस log y का डेरिवेटिव है 1/y dy by dx is equal to 16 divided by x plus y into इसका डेरिवेटिव that is 1 plus dy by dx है ना. x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव इज dy by dx. अब इसको ओपन कर देते हैं तो वी गेट 7/x plus 9/y dy by dx is equal to 16/x plus y plus 16/x plus y dy by dx. ओके, अब इसको इस साइड पे ले जाते हैं और इसको राइट हैंड साइड पे ले आते हैं. सो वी हैव दैट 9 डिवाइडेड बाय y माइनस 16 डिवाइडेड बाय x प्लस y dy by dx is equal to 16 divided by x plus y minus 7 divided by x. Okay, now I am going to simplify this. And therefore dy by dx is equal to y by x. Right, now let's move on to the next question. Now if you look at this question, 14th question is exactly like the 13th question. यहाँ पे वो 7 और 9 था और अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, a और b. तो मैं ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ लेकिन आई विल फास्ट फॉरवर्ड इट. Okay, so we have got the same answer again, y by x. Let's move on to the next question. अब जो सारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म के हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, पहले इसको t से डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर इसको भी t से डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर डिवाइड कर लेते हैं. राइट, सो पहले हम dx बाई dt ढूंढते हैं. सो dx बाई dt इन दिस केस इज 5 तो कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी 2t. राइट, नाउ dy बाई dt क्या होगा, dy बाई dt इज इक्वल टू 10 तो कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव 1 है तो ये यहीं पे रह जाता है. इसको आई कैन सिंप्लीफाई एंड राइट एज 10t. सो नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt. ओके, विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10t which is just 1/t. Okay, let's do the next question.
Okay, now in the 16th question, again we have to use the parametric functions rule. तो पहले हम x को t से डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन क्या है यहाँ पे हमें चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा. तो लेट मी राइट दैट x इज इक्वल टू e रेज टू u एंड u इज इक्वल टू 3t. तो dx बाई du इज इक्वल टू e रेज टू u and du by dt is equal to 3. So therefore I have that dx by dt by chain rule is equal to e raised to u, which is 3t into 3. Right? Now we differentiate y with respect to t. Again we'll have to take y is equal to e raised to root t. So let me write u instead of root t and let me take u as root t. Now because I've already used u, I will change this to v. Okay, dy by dv is equal to e raised to v and dv by dt is equal to 1 upon 2 root t. Right? अभी इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके we get that dy by dt is equal to e raised to root t divided by 2 root t. Now let's find dy by dx. So dy by dx is equal to e raised to root t divided by 2 root t. This whole thing divided by dx by dt, which is 3 e raised to 3t. Right? So इसको simplify कर सकते हैं as e raised to root t minus 3t. ये ऊपर चला जाएगा divided by 6 root t. That is our final answer. Differentiate log of 1 plus x square with respect to a raised to x. Now here what I do is मैं लेती हूँ कि let v be equal to log of 1 plus x square और u को रहने दो a raised to x. तो हमें बेसिकली क्या ढूंढना है, हमें dv by du ढूंढना है. ओके, अब पहले इसको हम किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, x से. तो यहाँ पे वापस चेन रूल यूज होगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू डू इट डायरेक्टली दैट dv by dx इज गोइंग टू बी इक्वल टू लॉग का क्या होता है, पहले इट विल बिकम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जो अंदर है उसका डेरिवेटिव विच इज जस्ट 2x. तो इसका आंसर है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, और अब हमें u को डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो हो गया du अपॉन dx इज इक्वल टू a रेज टू x log a. Right? That is the derivative of a raised to x. Now dv by du is equal to 2x divided by 1 plus x square. This whole thing divided by a raised to x log a. Okay? So therefore अब ये नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास है 2x divided by a raised to x log a into 1 plus x square. Now in the 18th question, I take u is equal to e raised to 4x plus 5 and v is equal to 10 raised to 4x. Okay, तो हमें पहले दोनों को ही डिफ्रेंशिएट करना है x से और फिर हमें du by dv ढूंढना है. ठीक है, तो वो करते हैं हम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल du by dx is equal to, this has chain rule but I am going to do it directly. e raised to anything is just पहले e raised to that thing and फिर जो भी उसका एक्सपोनेंट है यानी कि जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव करना है. तो here it will just be 4. Okay, and what about dv by dx? Here also we have to use chain rule. तो ये है dv by dx is equal to, पहले 10 raised to 4x ही रहेगा into log 10. ठीक है, इसका डेरिवेटिव, और अभी ये 4x का डेरिवेटिव विच इज जस्ट 4. ओके, नाउ टू फाइंड du by dv we have to divide this by this. So we get e raised to 4x plus 5 into 4 divided by 4 into 10 raised to 4x log of 10. Right? अभी ये 4 कट हो जाएगा, तो we get e raised to 4x plus 5
divided by 10 raised to 4x log 10. Now here we have to find the second derivative. So let's first find the first derivative. So dy by dx of log x क्या होगा? It is 1 upon x. एंड अभी हमें 1 upon x को वापस डिफ्रेंशिएट करना है, तो दैट इज x रेज टू -1 है ना 1 upon x, तो वो x रेज टू -1 का पहले -1 नीचे आएगा और फिर x रेज टू -1 -1, तो x रेज टू -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. ठीक है, दैट्स इट, दैट्स योर फाइनल आंसर. ओके, नाउ इन द 20th क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव और हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए हैं क्वेश्चंस. अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइजेज में नहीं सिखाए थे, राइट? लेकिन आई विल टीच यू हाउ टू डू दिस, बट आई फील दिस इज हाईली अनलाइकली टू कम इन द एग्जाम, okay, because there are no such exercise questions. So first of all I will find dy by dt, okay, which is equal to 2a because t ka derivative is 1. Then I'll do dx by dt, so here it is a into 2t, right? Now first dy by dx is equal to 2a divided by 2at. Okay, so basically this is 1 upon t. Okay, now how do we proceed? So here we have to take the second derivative, that is we are differentiating this whole thing with respect to x again, right? So if I do d by dx of dy by dx on this side, then I want to do d by dx of 1 upon t also, right? अब इस साइड पे तो ये हो जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लेकिन इस साइड पे हम t को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमें नहीं आता ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा. तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको t से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके, एंड देन वील डू dt बाई डी एक्स. यू सी ये चेन रूल फॉर्म हो रहा है, राइट, फ्रॉम योर. तो अब ये सॉल्व करना पॉसिबल है. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन t? इट इज -1 अपॉन t स्क्वायर, राइट? एंड व्हाट इज dt by dx? इट इज 1 डिवाइडेड by dx by dt, which is 1 upon 2at. So our final answer becomes -1 upon 2at cube. Okay, so I would say that this step is extremely important for these kind of questions. Let's do the next question now. Now in the next question we have to find the second derivative if y is equal to x square e raised to x. First let's find the first derivative. ये UV rule से करना होगा. So dy by dx is equal to x square as it is, e raised to x का derivative is e raised to x, plus e raised to x as it is, x square का derivative is 2x. Okay, इसके बाद हमें वापस डिफ्रेंशिएट करना है, पर उसके पहले टू मेक दिस ईजियर मैं ई रेज टू एक्स को कॉमन ले लेती हूँ और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ठीक है, चलो अभी वापस डिफ्रेंशिएट करते हैं, वापस यू वी रूल है. ठीक है, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स को ऐसे ही रखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. ये है 2x प्लस 2. नाउ आई कीप द ब्रैकेट एज इट इज इनटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई रेज टू एक्स ही है. ठीक है, अभी इन दोनों में से भी हम ई रेज टू एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, राइट? ये 2x प्लस 2x 4x हो गया. नाउ इन द 22nd क्वेश्चन वी आर गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 और हमें दिखाना है कि डी स्क्वायर y upon dx square is equal to 80 divided by 3x plus y the whole cube. ठीक है, first step is to find dy by dx. Okay, so this is an implicit function, so we get that 2x plus 6 common, x dy by dx plus y plus 2y dy by dx is equal to 0. ठीक है, अब हम कॉमन ले लेते हैं dy by dx को, तो we get 6x plus 2y dy by dx is equal to minus of 6y plus 2x. ठीक है,
अब हम इसको इधर डिवाइड कर देते हैं. ऑल्सो एक और चीज़ भी मैं करूँगी कि आई विल डिलीट 2 फ्रॉम एवरीवेयर. ओके, सो देयरफॉर आई गेट 3y प्लस x डिवाइडेड बाय 3x प्लस y. ओके, नाउ वंस दिस इज डन आई विल फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव. ठीक है, तो इसी को डिफ्रेंशिएट करना है u बाई वी रूल से. सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस साइन को बाहर ही रखते हैं हम. ठीक है, तो 3x प्लस वाई. अभी हमें डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमरेटर को, तो वो हो जाता है 3 dy बाई डी एक्स, वापस इम्प्लिसिट फंक्शन से, प्लस 1. ओके, माइनस 3y प्लस एक्स ऐसे ही, और हमें डिफ्रेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को, सो दैट इज 3 प्लस dy बाई डी एक्स. ओके, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई 3x plus y the whole square. Okay, now I will open all this. So we get minus 1 upon 3x plus y the whole square. अभी अंदर क्या मिलेगा? ओके, सो मैं सारा dy by dx टर्म्स एक साथ रखने वाली हूँ. सो योर आई गेट 9x प्लस 3y dy by dx, और यहाँ पे क्या है? इट इज़ माइनस 3y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर. अब सारे बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स, तो उसमें हमारे पास है पहले प्लस 3x प्लस वाई माइनस 3y इंटू 3 भी है, तो ये हो जाता है 9. ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 3x. ठीक है, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो दिस इज माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर. योर वी हैव 8x, क्योंकि ये 3y कट हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, एंड योर वी हैव माइनस 8y. सो नाउ आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस 8 आउटसाइड. ठीक है, एंड आई विल सब्सटीट्यूट इन प्लेस ऑफ dy बाई डी एक्स एज this ratio. Okay, so I get minus 8 divided by 3x plus y the whole square. x into dy by dx क्या है? माइनस साइन के साथ 3y प्लस x डिवाइडेड बाई 3x प्लस y माइनस y. ठीक है, ये माइनस साइन को बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा. तो वी हैव 8 divided by 3x plus y the whole square. Okay, now I will take LCM इधर. ठीक है, अंदर सब कुछ प्लस हो गया है, मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया था इसलिए. तो ये है 3xy प्लस एक्स स्क्वेयर. ठीक है, सो प्लस 3xy, क्योंकि माइनस साइन इज गॉन आउट राइट, प्लस वाई स्क्वेयर. ओके, डिवाइडेड बाय दिस 3x प्लस वाई, तो आई विल टेक दैट आउट और इसको मैं क्यूब बना देती हूँ. ठीक है, अब हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई द होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर. नाउ ये कहीं देखा हुआ है? दिस इज नथिंग बट अ क्वेश्चन राइट, जिसका वैल्यू है 10. तो इसलिए इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू 10 हो जाता है. वो इससे मल्टीप्लाई होके दिस बिकम्स 80 डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई द होल क्यूब. ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैड टू प्रूव. नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई विल यूज अ स्मॉल ट्रिक. ओके, इन द बिगिनिंग ये जो 2hxy है उसको आई राइट एज hxy प्लस hxy. तो ये हो जाता है ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, पहले दोनों में से आई विल टेक x कॉमन. सो आई गेट x ax प्लस hy. ठीक है, इन दोनों को मैं दूसरे साइड पे ले जाती हूँ, तो ये माइनस y कॉमन, तो by प्लस hx. ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं दैट y बाई x is equal to minus ax plus hy
डिवाइडेड बाय बी वाई प्लस एच एक्स. ठीक है, अब ये कहाँ पे यूज होगा वो हमें थोड़े टाइम में पता चलेगा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज फॉरगेट अबाउट दिस फॉर अ व्हाइल एंड डिफरेंशिएट दिस यूजिंग द नॉर्मल इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन दैट वी नो. तो इसको डिफरेंशिएट करते तो हमें मिलता है a 2x प्लस 2h x को ऐसे ही तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई, राइट, प्लस b इंटू 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. Okay, first of all, so we can delete this 2 from everywhere and I will also open the dy by dx. So I get hx plus by dy by dx plus ax plus hy is equal to 0. Okay, let me take this to the other side. So I get dy by dx is equal to minus of ax plus hy divided by hx plus by. Okay, now once we have got this, this should ring a bell and you should be able to see this, right? इसको हम replace कर देंगे by y by x. So we have that dy by dx is equal to y by x and we want to find now the second derivative. So let's do that. So d square y upon dx square is equal to x into dy by dx minus y into 1 divided by x square. ये हमें कहाँ से आया है, ये हमें u by v रूल से आया है. Now dy by dx क्या है, y by x, इधर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x into y by x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब ये कट हो जाएगा तो हमें मिलता है y माइनस वाई इज 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव दैट द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 0. नाउ दिस सेम मेथड you could have also used in the previous question, but I wanted to show you both the ways to do it. ठीक है, ये मच शॉर्टर वे है करने का, वो वाला में ट्रिक नहीं लगाना पड़ता पर वो थोड़ा लॉन्ग है. ठीक है, सो यू कैन डू वॉट एवर यू फील इज ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड.